The next zone, the northeast zone, will be performing next. Before that, there will be a mentalism by Mr. Shamir. Illustrate your mind with mind hacking. Read someone's mind is ordinary. Hack someone's mind is extraordinary. I am going to hack your mind. If anyone doesn't have any objection to reveal ATM pin in public, please come to stage and part with the experiment of mentalism. Give a big clap. Oh, thank you. Anyone can. Please come. May I know your name, sir? My name is Narayan. From, sir? Huh? Which zone are from? I am from Red Zone. Sir, people, it's not that simple. Take something from someone's mind. It's not that simple. Sir, one thing I would like to share with you. 2 weeks before, I have received one message from coordinator Ajay sir that was message, please call me soon. Then I called him back. He mentioned about this program and he assured that you are going to perform special performance in this event. That's great. Sir, it's very grateful and thank for your consideration. And one thing I demanded that, sir, I need ATM machine. Suddenly he disconnected the phone. 2 days before, I made him call to accommodation. He didn't respond. Yesterday night, again I made a call him for schedule of my program. He didn't respond. I know very well this is not possible to install ATM machine for my performance on this stage, but everyone wants reality. Everyone believes in reality. I do. I am also believes in reality in my performance. So, same ATM machine. With ATM machine, I am hacking your ATM. Before that, I have made a video. Before reality, I made a video record for my performance in front of ATM machine with 10 people. Among that one, randomly choose one and inserted ATM card and enter his ATM number and withdraw 1,000 rupees minimum amount from that ATM machine and record that video and posted in social media, Instagram Shamirism and Facebook Shamirism and shamirism.com website also. But later I removed from that video from that social media because due to security reason. Same performance angle I would like to create here. That I have mobile phone. It's a machine. Imagine if you enter an ATM machine. First you enter the machine your PIN number, then you will get the cash. Means you will get the result. Right? Same way, I am going to set your ATM PIN number. 4-digit ATM PIN number. You have 4-digit ATM number? Your real ATM number. I am going to set my phone lock. I am going to set my phone lock your 4-digit ATM PIN number and you will enter and you will unlock my phone. Clear? Clear to all? Don't change your number in between my performance, otherwise I will fraud. You can change ATM PIN number after my performance.
Otherwise, you can create 4-digit, no problems. But okay, that's why I know it. Don't change that that the digit in your way. Eh? Okay, I believe you. While counting, don't give any indication, shaking head or blinking eyelash. Eh? Can you remove your spectacles? Chashma, Nicholas. Glass. Can you remove your glass? Stick your ATM number in your mind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6789 6789 9876 4321 1234. Already done. You can unlock my phone with your PIN number. Only your PIN number. Just wait. Before that, sir, could you please enter 4-digit, any 4-digit? Otherwise, you can enter your ATM PIN number in this time. Let me check. It's working. Let enter 4 digits, sir. It's not working, huh? Yeah, yeah. Yeah. But have you noticed anything? Hmm? Very weak in clap. While clapping, very weak. I felt very weak because everyone, earlier I mentioned that everyone believes in reality. This time you can clap very well manner. What's your? Yes, that was my ATM number and that was also my union registration number. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Samir. It is really very mesmerizing and very mentalism is very, what do you call that? No words to say. Give him a big round of applause, please. Now we are moving on to the next drama, that is the Northeast Zone. I request the Northeast Zone drama to give the synopsis, please. It's common for people to judge others' personal lives based on assumptions without any idea of the complete truth of the matter. This drama tries to depict the truth of common events against the preconceived notions of society. This drama also attempts to present a collage of few different stories in an abstract form
where people are victimized by societal prejudice. Special thanks to Sri Julius Mahalia, Niharika Deka, and Sri Hitesh Hatkova for controlling the light and music for this drama. We are also very thankful to our team leader, Sri J.S. Saiju sir, for his overall supervision. We hope that the audience would be able to relate with these scenarios while watching this drama and leave with the resolve to be more tolerant and free oneself of all kinds of prejudices. Also, please make a note that all incidents and characters in this drama are fictitious and any resemblance to reality is coincidental. It is not our intention to hurt the sentiments of any religion, community, or group of people, and any unintentional hurt caused is deeply regretted. Thank you. गौरी मनोहरम वंदे हर हर बरह पदम वंदे वंदे नटराजम वंदे वंदे नटराजम वंदे शंभु उसमें आ गए। क्या हुआ? आपने डरे हुए क्यों हैं? कुछ बुरा सपना देख लिया क्या? अरे डरिए मत सपना आखिर सपना होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। हाँ भाई साहब, सुना है आपको बहुत सारी बातें बोलना है, बहुत कुछ कहना है, तो फिर चलिए आप बोलिए, आपको क्या क्या बोलना है? बोलिए। हाँ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? बोलिए बोलिए। कुछ तो बोलिए। नहीं बोलेंगे? लगता है भाई साहब कुछ बुरा मान गए। क्यों नहीं मानेंगे बुरा? क्यों नहीं मानेंगे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि सिर पे मत मारो, लेकिन नहीं। बेहोश करने का दूसरा तरीका भी तो था। दूसरा तरीका? कौन सा दूसरा तरीका? अरे एनेस्थीसिया दे सकते थे। हाँ, एनेस्थीसिया दे सकते थे। तुम कितनी स्मार्ट हो। अरे बेवकूफ हो तुम। एनेस्थीसिया देने के लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है। कौन देगा वो? तुम्हारा बाप। इसीलिए मैं बोलता हूँ, तुम्हारे दिमाग में ना वो है। गोबर, मैं तो सिर्फ वो बोला था। लेकिन समझाना तो वही चाहते थे ना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हें। रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारे। देखा भाई साहब, इसीलिए आपको इतनी सम्मान के साथ यहाँ पे लाया है। यही है हमारी जिंदगी। मैं कुछ भी बोलूं, इसको उल्टा मतलब निकालना ही है। इसीलिए आपको जो कुछ भी बोलना है ना, सब बोल दीजिए। बोलिए। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तो गांधी जी के क्यूट बंदर है ना। अच्छा, गांधी जी के 14 क्यूट बंदर जो बुरा ना देखेंगे, बुरा ना सुनेंगे, बुरा ना बोलेंगे। देखो ना, अरे देखो ना, ये कितना थक गया है, कितना पसीना आ रहा है इसे। आपको प्यास लगी है क्या? मैं आपके लिए पानी लाऊं? हाँ, लाओ। हमने तो कभी इतना प्यार नसीब नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मर जाएगा ये। पानी ला।
ये लीजिए। हम भी कितना पागल है, ये कहां से पिएगा पानी और बोलेगा भी कहां से? इनका तो मुंह ही बंद है। क्या बोलूं मैं? आप लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। आपने भी तो हमारा जीना हराम किया था। मैंने? हाँ, आपने भी हमारा जीना हराम किया था। मेरी बीबी रात को देर से घर आती है, दूसरों के बाइक पे यूं चिपक कर। भाभी ने बोला था ना। हाँ, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, लेकिन दूसरों के लिए इसके पास पूरा टाइम है। और ऑफिस पार्टी के नाम पे न जाने किस के साथ। मैंने कब बोला ये सब? अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, लाजवाब, जबरदस्त। बकवास, ओवर एक्टिंग के लिए 10 मिनट काटेगा। क्या ओवर एक्टिंग? और मैं? हाँ, उससे भी ऊपर कुछ है ना, वो वाला एक्टिंग खाइए। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई वजूद नहीं है क्या? और तो क्या हुआ? पढ़ी लिखी हूँ और तो और तुमसे ज्यादा कमा लेती हूँ, इसीलिए ना चलते हो तुम मुझसे। मैं चलता हूँ? हाँ। मैं चलता हूँ हाँ। तुमसे? हाँ। अरे समझती क्या हो अपने आप को? झेल रहा हूँ मैं तुम्हें, झेल रहा हूँ। तुम्हारे नखरे उठाते मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। रोज रोज वही बकवास फेमिनिज्म सुन सुनकर मेरा कान पक गया है। हाँ, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दो ना। पकड़ के कौन रखा है डार्लिंग? जाओ ना। चली जाऊंगी। हाँ, जाओ। भाई साहब, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए। ये मत कम है ना। और भाई साहब, आप भी कैसे इंसान हो? आपकी बीवी इतनी सुंदर है, सरल है, अच्छी है, आपको बुरा नहीं लगता इनको दुख देने में? सुना तुमने इसने क्या कहा? तुम सरल हो, सुंदर हो और तो और तुम अच्छी भी हो। फिर पूछो इनसे हर उस सवाल का जवाब जो तुम्हें चाहिए। पूछो। सवाल? हाँ, सवाल। ये जो आप मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को जज करते हैं, मैं कब कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, कब वापस आती हूँ? मेरी बीवी रात को गेट के बाहर किसके साथ बात करती है, कितने समय बात करते हैं, फोन पे किसके साथ बात करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने ये सब कब बोला? क्यों बोलूंगा मैं ये सब? आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। आप लोगों को पता भी है कि मैं कौन हूँ। हाँ, पता है। हाँ, हमें पता है कि आप कौन हो। और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि आप कौन हो। आप हमारी कंवलिक बाई हो। भाई कमली? अरे रुकिए, आप हमारी बगल वाली आंटी हो। या फिर हमारे वो साइड वाले अंकल। हाँ, आप कारपेंटर हो, अपना हो, पराया हो। आप आदमी हो, औरत हो, इंसान के नाम पे कलंक हो। आप देखो, जिनका कोई निजी अदालत नहीं है। अरे नहीं, अदालत है। हाँ, लोगों का आंगन, घर का प्रांगण, ऑफिस का टेबल, चाय का दुकान, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, हर जगह पे एक अदालत है। अच्छा, जहाँ पे हर किसी का जजमेंट होता है। वाह,
आपकी अदालत में हम पेश करते हैं अपना केस। हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, माना कि कुछ बहुत बड़ा नहीं करते, लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो सब कर पाए जो हमें बचपन में नहीं मिला। कभी कभी ऑफिस से घर आने में बहुत देर हो जाती है। कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उन्हीं के साथ आ जाती हूँ। लेकिन आप जैसे लोग बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे हमें जज करते हैं। सुना आपने? हम जैसे मिडिल क्लास लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे दिन रात एक कर देते हैं। दिन भर ऑफिस में रगड़ के थका हुआ आदमी जब शाम को घर पहुंचता है तो अपने बीवी के साथ एक कप चाय पीने का, दो मीठी बातें करने का मन करेगा ना? लेकिन उसके लिए भी हमें वक्त नहीं मिलता। और अगर गलती से वो वक्त मिल भी गया, आप लोग तो हो भी उसे बर्बाद करने के लिए। ये बेचारे दिन भर मेहनत करते, घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, सबका ख्याल रखना, ये सब करके थक जाती है। मन तो बहुत करता है कि थोड़ा सा हाथ बटा दूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सपनों के पीछे भागते अपनों से ही दूर चले आए। क्या तुम सच में मेरी इतनी परवाह करते हो? सुन लिया आपने हमारा केस। अब दीजिए जजमेंट, दीजिए जजमेंट। ठीक है, पैसे चाहिए, लेकिन पैसों से भी ज्यादा कीमती वक्त होता है। अरे आप लोग अभी जवान हो, एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है। शादीशुदा जिंदगी में यही वक्त सबसे मधुर होता है। लेकिन देर रात तक दूसरों के बाइक पे किसी और की जवान बीवी घूमती फिरेंगी तो लोग बात करेंगे ही ना। जवानी उम्र ही ऐसी है। तो फिर हम जैसे बूढ़े बुजुर्गों के बारे में क्या कहेंगे आप? आपने तो हमें भी नहीं छोड़ा। आप कौन? हम वो बूढ़े पति पत्नी हैं जो अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में रहते हैं। वृद्धाश्रम? पर क्यों? आप लोगों की औलाद ने आपको घर से निकाल दिया क्या? आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि हम अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में रहते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों की कोई औलाद है ही नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। आपसे किसने कहा हमारी कोई औलाद नहीं है? इकलौता बेटा है हमारा, अभी वो हट्टा कट्टा नौजवान है। मैंने आपसे कितनी बार कहा उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढिए, हमें उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करनी है। लेकिन नहीं, आप हर बात मेरी अनसुनी कर देते हैं। अरे ढूंढ रहा हूँ। आजकल अच्छी लड़कियां मिलना कोई आसान बात नहीं है। और वो नालायक खुद के लिए भी तो लड़की ढूंढ सकता है, लेकिन नहीं ढूंढेगा। कभी कभी तुम पे शक होता है। क्या शक? अरे यही कि वो
हमारा बेटा बियर ही। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। आपका अपना बेटा होने के बावजूद आप लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, वैसे आपका बेटा रहता कहाँ पे है? हम सबसे बहुत दूर, विदेश में। बहुत बड़ा आदमी हो गया है वो। बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, इसलिए हम दोनों ने उसके आंखों में बड़े बड़े सपनों के बीज बोए थे। और उन सपनों के पीछे भागता था वो। कभी कभी गिर जाता था, कभी कभी निराश होकर ये भी कहता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा पापा। तब हम उसे हौसला देते थे कि तुम कर पाओगे बेटा, जरूर कर पाओगे। और तब वो उठता था और फिर से भागने लगता था। ठीक उन सपनों को छूने से पहले उसे एहसास होगा कि एक दिन इन्हीं सपनों को पाने के लिए उसे अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमसे दूर हजारों मील। उस दिन बहुत रो रहा था, रो रो के कह रहा था, माँ पापा आप भी हमारे साथ चलिए, सब साथ रहेंगे, प्लीज प्लीज। ये सब नाटक बंद करिए आप लोग। अगर वो आपको लेके जाना ही चाहता था तो आप लोग गए क्यों नहीं? बोलिए बोलिए, क्यों नहीं गए? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। किसी अनजान शहर में अजनबी के बीच जेल की कैदी की तरह जीवन नहीं बिताना था हमें यही रहना था, अपनों के बीच। आपको दुख नहीं होता अपने इकलौते बेटे से दूर रहने में? दुख कैसे नहीं होगा? जिस बच्चे को जन्म दिया, अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, भला उसके दूर जाने से दुख किसे नहीं होगा? जब वो जा रहा था ना, इस दिल पे बहुत बड़ा पत्थर था मेरे। इस दिल पे बहुत बड़ा पत्थर था। जब उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था ना, तो इस सीने में बहुत दर्द हुआ था। और मिनट मिनट पे उड़ने वाली वो हवाई जहाजें जैसे अंदर से खोखला कर रही थी अभी। लेकिन इकलौते बेटे के बिछड़ने के दुख से ज्यादा हमें इस बात की खुशी थी कि आज वो एक कामयाब इंसान है। आज वो एक कामयाब इंसान है। अरे पागल हो गए हो आप, सच में बुढ़े हो गए हो, और उम्र ने आपकी सोचने की शक्ति कम कर दिया है। और सुनिए, लोग ऐसी कहानियां नहीं बनाते। जो अपने सामने होता है वही कहते हैं। जो अपने आंखों से दिखता है वो वही सच होता है। और सच कहना कोई गुनाह नहीं होता। सही कहा आपने, सही कहा आपने। सच कहना कोई गुनाह नहीं होता। और आप लोग जो देखते हैं, देख के जो सोचते हैं वही कहते हैं। तो फिर चलिए, आज मैं आपको एक छोटी सी घटना दिखा दूं। आप बस उसे देखिए और बोलिए आपने क्या क्या देखा। ठीक है? तो फिर देखिए, समय रात के 9 बजे। बस स्टैंड पे कोई लड़की खड़ी है, उम्र 20-22, बहुत देर से इधर उधर कर रही है, ना घड़ी देख रही है,
शायद किसी की इंतजार कर रही होगी, किसी को फोन कर रही है, अपना पता बता रही है, उसे बुला रहा होगा। लड़का आया, जवान, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की शायद वो मना कर रही है। पैसों की बातें हो रही है। लड़की ने 5,000 बोली, लड़का ने 2,000 बोला, या पर्स भी दिखाया। पैसे देखे लड़की खुश हो गई। खुलेआम रास्ते में ये सब, छी 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 छी। आजकल के ये आम रास्ते चले गए। अमीर बाप के ये बेटे और ये बेशरम लड़कियां, पैसों के नशे ने सबको पागल कर दिया है। ये है हमारे देश का भविष्य। कहाँ जा रही है ये नई पीढ़ी? कलयुग है, घोर कलयुग। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, इतना दुखी मत होइए। आप ये बोलिए, मजा आया ना? आया ना मजा? तो फिर ठीक है, अब हम इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं, सामने से। हाँ, और साथ में हम ये भी सुनते हैं कि उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुआ था। ठीक है, तो फिर देखिए, समय वही रात के 9 बजे। हेलो, हाँ भैया, कहाँ पे हो आप? हाँ, मैं यहीं पे हूँ, वही बस स्टैंड के सामने। जल्दी आ जाओ भैया, हाँ जल्दी। बहना, भैया, ये बता, माँ कैसी है? माँ की हालत बहुत खराब है भैया। तू इतनी उदास क्यों है? तू धीरज रख। कैसे रखूं मैं धीरज? और सहन नहीं होता है, नहीं होता है सहन। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा कि माँ की जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। पैसे? कितने पैसे चाहिए? कम से कम 5 लाख। 5 लाख? तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त भैया? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। 2 दिन? सिर्फ 2 दिन दे मुझे, मैं सब कुछ संभालूंगा। और ये देख, आज के खर्चे के लिए मैं पैसा लाया हूँ। भैया, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू बस माँ का ध्यान रख। माँ मुझे तो पहले ही चले गए, और मगर माँ भी। अरे अरे पगली, रो मत पगली, रो मत। तेरा भाई अभी है, हाँ? तेरा भाई अभी जिंदा है, कुछ नहीं होगा। चल हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ माँ अकेली है, हम लोग चलते हैं, हाँ? तेरा भाई अभी है, बिल्कुल टेंशन नहीं। हे भगवान, ये क्या सोच लिया मैंने? इन बेचारी भाई बहन के रिश्ते को भी मैंने नहीं छोड़ा। और अगर हम भाई बहन ना हो तो? अगर हम दोस्त हो और किसी चाय पे दुकान पे एक कप चाय पी रहे हैं तो? या फिर अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस हो रहे हो? उसमें भी तो आप हमें जज करते ना। इतनी उम्र हो गई है इस लड़की की, अभी तक शादी नहीं हुई। कुछ
कमी होगी उसमें। क्या कहा? शादी को 4 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। और वो देखो, लड़का होके लड़के के साथ ही। छी 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 छी। सुना है लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उनके पास बड़े बड़े डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, और अब देखो बाप के होटल में रोटियां तोड़ रहा है। अरे हमें तो पहले से ही मालूम था, सब खरीदवा हुआ मानसिक है। अब वो देखो बेशरम आदमी, इस उम्र में भला कोई शादी करता है? छी 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 छी। अरे ये लड़की तो सबके साथ हंसी मजाक करती है, इसका तो कैरेक्टर ही ढीला है। क्या कहा? रेप हो गया इसका? ओह, हमें तो पहले से ही पता था। क्यों नहीं होगा भला? इतने इतने कपड़े पहनती थी वो। उठते बैठते खाते सोते सिर्फ जजमेंट जजमेंट और जजमेंट। यहाँ तक कि आप लोगों के इन्हीं जजमेंट की वजह से ना जाने कितने लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। और दुनिया की कोई भी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्यों शांति से जीने नहीं देते आप लोग? क्यों? लोगों के बारे में जाने बगैर, समझे बगैर, सोचे बगैर क्या ऐसे जजमेंट देना सही है? बोलिए ना, क्या ये सही है? बोलिए सच साहब, बोलिए, बोलिए, बोलिए ना, बोलिए, बोलिए। अरे बोलिए ना। गलत है, गलत है, गलत है। हमें ये नहीं पता कि किसका क्या परेशानी है। अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन किसके क्या लगते हैं। हम बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे लोगों को बस जज करते हैं। गलत है, ऐसा करना गलत है। मैं मानता हूँ कि ऐसा करना गलत है। मैं मानता हूँ कि ऐसा करना गलत है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा कि आप समझ गए। और हम ये भी आशा करते हैं कि बाकी लोग भी समझ जाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं, लोग जितना भी जाने, जितना भी समझे, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। Judges, short introduction. I'll begin with our Judge Sahab. It's played by Shayan De. Next is the sister, played by Ms. Ronita Chakraborty. The husband in the couple, played by Mr. Pulakesh Burman. Mother, played by Ms. Anjali Tiwari. Old father, played by Mr. Umakant Tiwari. Brother, played by Mr. Abhishek Sharkar. Last but not the least, wife, played by Ms. Naina Kalita. Sound and music by Mr. Julius Mahalia, Ms. Niharika Deka, and Hitesh Hakkoa. Thank you so much. Overall supervision, our team leader, Shri J.S. Saidu sir. Thank you, everyone. The next drama will be played by the South Zone and followed by West Zone. That will be the last drama of this day one. I request the West Zone and South Zone to have their lighting and other arrangements fast so that मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे
मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा मेरे मन को किया तुझे क्या इशारा आजा तेरा चलिए प्यार से मैं कर दूं प्यार से मैं कर दूं खुशियाँ जहाँ घर की तुझको नजर कर दूं तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छूकर मेरे मन को या तूने इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम Thank you. A big round of applause, please. Arjun, come up. Arya. Yeah, give a big round of applause for the master Arjun, who has given a very wonderful performance. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं
उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से पीना। नजरों में तेरी हैप्पी बर्थडे सर। तो है जादू, तूने मेरी हम में हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका नया कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल की दास्तां, चेहरा एक पल नशी, चेहरा एक पल गया, चेहरा जैसा कि चेहरा कहीं भी नहीं। माहरू माहरू महजबी महजबी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। Thank you. Big round of applause, please. Thank you. Kate. We need more. One more. They're asking. Yeah, you can go ahead. One more. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे पल में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तार, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। First of all, I hope that you had a wonderful stay here and you'll continue it for the coming days also. SRSPC proudly presents our Hindi drama, Jallad. The synopsis goes like this. In a gripping tale of survival and transformation, we present before you Jallad. The story revolves around Charulata, a gentle soul who finds herself forced into the harrowing role of a hangwoman due to her family's dire financial situation. Despite her soft-hearted nature, which makes her shudder at the mere thought of death, she succumbs to poverty's relentless pressure. This drastic shift not only challenges her moral compass, but also leads her down a dark path, ultimately unraveling her psyche as she grapples with the stark contrast between her identity and her grim profession. Join us for this performance where Charulata's story unfolds against a backdrop of societal pressures and personal turmoil. Witness her transformation as he navigates the complexities of duty, identity, and resilience in a world that demands sacrifice at the cost of one's humanity. This drama promises to be an unforgettable exploration of strength and vulnerability in the face of overwhelming odds. Once again, SRSPC South presents to you Jallad. Thank you. The drama of South Zone begins. তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছে আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি, তোমার খোলা ख्वाहिश याद आती है, बिना मरे बच्चों की मासूम चेहरा याद आता है। मुझे दुख होता है माँ, मुझे बहुत से डर लगता है माँ। अरे बेटी, तुम ऐसे बिल्कुल मत सोचो। जाकर पानी गर्म कर, पापा भी आएंगे ना। हाँ? चारू, ये क्या है? ये तुमने बनाई है? हाँ हाँ। वाह, कितनी खूबसूरत है ये। मेरी चारू की तो बहुत अच्छी है। हाँ,
मैं कहने को भूल गई, तुम्हारी सहेली है ना वो स्वर्णा। हाँ वो आई थी आज। अच्छा हाँ, पूजा करने के लिए वो काली मंदिर गई है। कौन सी पूजा? वो जो एक मंगल पूजा है ना। मंगल पूजा? हाँ, एक अच्छे पति मिलने के लिए। अरे क्या बकवास कर रहा है? साला बुड़बक, ये सिखा रहा है। ये सालों से ईमानदारी से करते आ रहे कोई पेशा है ये, और वो मुझे सिखा रहा है। पापा क्या हुआ पापा? आज बहुत गुस्से में हो। अरे नहीं बेटे, देख देख बेटे क्या लाया, तुम्हारे सबसे पसंदीदा मक्के लाया हो, देख। जाओ तुम्हारे भाई को भी देना। हाँ पापा। देवी थक गया, थोड़ा पानी लाओ ना। रविंदर, अरे यार बारी रविंदर। दादा, अरे यार खुशखबरी है। दादा खबरी है। कैसे हो? दादा। बैठो बैठो बैठो। तो पता है, राष्ट्रपति ने मौलिक बनर्जी की दया याचिका को रद्द कर दिया है। दादा इसमें खुशी की क्या बात है दादा? अरे खुशी की बात यह है कि जल्लाद कौन बनेगा अभी? तू ही ना। ऐसे मत बोलो दादा, एक जान लेना उतनी आसान बात नहीं है। अरे इतने साल गरीबी में डूबे थे ना तुम लोग, अब ऐसे बातें कर रहे? कल भी बैंक से आए जब्ती नोटिस के बारे में तुमने मुझे बताया था ना, तुम्ही ने बताया ना मुझे। अब हाँ दादा, ये तो सही है। 45 लोगों को मैंने अपने इन्हीं हाथों से फांसी दिया, मगर उसके लिए मुझे कुछ पैसे भी मिले थे, जल्लाद का पगार। मगर मगर देखो, मेरा परिवार अभी भी भूखा प्यासा ही है। मेरा बेटा अपाहिज है, उसके तो पैर नहीं है, और चारों बिटिया के बारे में तो मैंने एक काम के लिए पता नहीं कितने दफ्तर जाके आया। कलेक्टर साहब से मेरी बात। अरे मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था तो तुझे बोलना ही भूल गया यार। मुझे ना कलेक्टर साहब की दफ्तरी से एक फोन आया था। अच्छा? मेरा ऐसा लगता है कि ये मौलिक बनर्जी की फांसी के आदेश ही होगा। अगर ऐसा है तो एक सुनहरा मौका है ये। रविंदर मेरे भाई, इसको ना अपने हाथ से जान मत देना, क्योंकि अब जल्लाद के जीवन को सोने से भी ज्यादा कीमत है। मैं लगाऊं फोन, ठीक है? हेलो 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 सर, नमस्ते नमस्ते सर। हाँ किरण बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, हाँ मैं रविंदर के घर में हूँ सर। हाँ मैं उनको फोन देता हूँ, एक सेकंड सर। भाई जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए, ठीक है? हेलो, नमस्ते सर, रविंदर बोल रहा सर। मैंने चारू के काम के बारे में मोनिक साहब, मैं ये आदेश नहीं लूंगा साहब। मेरी बेटी को काम दिए बगैर मैं ये आदेश नहीं लूंगा साहब। साहब मैं इस पर बहुत जिद करूंगा। कितने साल हो गए साहब? साहब मान से कभी साहब हम क्या? हेलो हेलो दादा, ना देख दादा। हेलो हेलो हो गया हाँ रविंदर, क्या हुआ? तेरी मैंने कलेक्टर से बोला कि चारू को काम दिए बगैर मैं मौलिक बनर्जी के फांसी का आदेश नहीं लूंगा, तो वो मुझ पर शारीरिक और मानसिक कमी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं दादा। ऐसे कैसे हो सकता है ये? देखो ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। मेरा एक दोस्त है CMC चावल में, हम ना वहां पे जाके अपने पूरा हाल बताएंगे। 4-5 लोग जानने से भी कुछ होगा इस पे। निकलेंगे हम यहाँ से। निकलो चलो देवी, अच्छा जाके आता। हाँ चलो।
लाइट्स ऑन। चारू, ओ चारू, हाँ कहाँ हो तुम बेटा? यही हूँ माँ। आओ जरा यहाँ, क्या हुआ? जरा टीवी चलाओ ना। हाँ जा। हाँ हाँ हाँ। देश की एकमात्र पुरुष जल्लाद श्री रविंद्र तिलमालिक पर शारीरिक और मानसिक कमी का इल्जाम लगाया गया है। दया याचिका रद्द किए गए अपराधी मोनिक बैनर्जी का फांसी लेने वाला जल्लाद श्री रविंद्र तिलमालिक पर शारीरिक और मानसिक कमी का इल्जाम लगाया गया है। रविंद्र जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम बाकी उन्हीं से सुनेंगे। नमस्ते रविंद्र जी, इस विषय में आपका क्या बोलना है? सरकार ने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी चारू को एक सरकारी नौकरी दी। बहुत साल गुजर गए, इस पे कुछ फैसला नहीं हुआ। तो अब मोनिक बैनर्जी को फांसी देने की बात आई, मैंने भी अपनी शर्त रखी, मेरी बेटी को एक सरकारी नौकरी दिए बगैर मैं ये फांसी का आदेश नहीं लूंगा। तो वो मुझ पर शारीरिक और मानसिक कमी का झूठा इल्जाम लगा रहे साहब। मैंने तो अपना पूरा जीवन सरकार पर समर्पित किया है, उसके कारण तो मेरा परिवार का भी नाश हो गया साहब। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सरकार के कारण आपका परिवार का नाश कैसे हो सकता है? इस काम के लिए वही सरकार आपको पैसा भी दे रहा है ना? पैसा तो देता है सर, मगर आपको शकील हुसैन याद है? उसको भी मैंने ही फांसी चढ़ाया, मगर उसके गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं तो बच गया, मगर उन दरिंदों ने मेरे बेटे के दोनों पैर काट लिए, उसको अपाहिज बना दिया। पता नहीं उसके इलाज के लिए पैसे मांगते मैं कहां कहां फिरा, ना सरकार है ना पुलिस है, ना मुझे कुछ पैसा मिला। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपका बेटा एक जल्लाद नहीं बन पाएगा? तो आप अपनी बेटी को जल्लाद नहीं बना सकते? वो तो एक लड़की है सर। हाँ, लड़की है तो क्या, एक जल्लाद के काम करने में कौन सी बुरी बात है? आजकल लड़कियां कोई भी बात कर लेते हैं, तो एक जल्लाद का काम क्यों नहीं? हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं। मुझे मेरी बेटी को जल्लाद बनाने मंजूर है साहब, मुझे मंजूर है। सीएनसी चैनल की एक्सक्लूसिव न्यूज, क्या देश की पहला जल्लाद बनेगी चारुलता तिलमालिक? ये हम इंतजार करके देखेंगे। इससे हमारा आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद, शुभ दिन। क्या ये सरकार इस जल्लाद का काम एक महिला को देगी? रविंद्र तिलमालिक की बेटी चारुलता तिलमालिक जल्लाद बनने के लिए योग्य है या नहीं, आपका क्या राय है? चारू पापा, बेटी, मैंने कुछ फैसला किया है बेटी। नहीं, कुछ मत बोलिए पापा। मैंने सब सुन लिया है। आप जानते हो, मैं चींटी को भी नहीं मार सकती। मैं गोली कैसे मारूं पापा? चारू, जल्लाद एक खूनी नहीं है चारू, हम कानून लागू करने वाले लोग। मुझे हमारे परिवार को बचाने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा बेटी। अगर मेरा बेटा शारीरिक रूप से ठीक होता तो मैं तुमसे ये सब नहीं करवाता। सुनिए, ये भी भोली सी लड़की है। मैंने आपसे बोला था ना, इसे नहीं हो पाएगा। अरे कौन नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा इससे? तू कौन
ये जवान बेटी और उस बेटे को लेकर हम सब रख के आ जाएंगे। देवी तुम मानो मेरी बात। बेटी मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा बेटी। इतने सालों में मैंने बहुत फांसियां दिया बेटी, वो सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे परिवार के लिए किया बेटी। तुम्हारी नसों में भी जल्लाद का खूनी बहता है बेटी। तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा बेटी, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे पिता के लिए। मैं तुम्हारे पैर में करता हूं। अभी क्या करूं पापा? बेटी पापा मान जाओ बेटी, हमारे पूरे खुशी के घर मैं जल्द बन जाऊंगी। सर बेबी, मैंने कहा था ना मेरी बिटिया मान जाएगी। मैं अभी कलेक्टर साहब के पास आता हूँ, अभी उनसे निवेदन दे के आता हूँ। आज की ताजा खबर, सरकार ने मोनिक बैनर्जी को फांसी देने के लिए रविंद्र कृतमालिक की बेटी चारुलता कृतमालिक को आदेश दे दिया है। चारुलता कृतमालिक बनेगी देश की पहली महिला जल्लाद। मोनिक बैनर्जी को इस महीने की 21 तारीख को फांसी दी जाएगी। आज की ताजा खबर, सरकार चारू, बेटी चारू, बेटी मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। फांसी देना उतना आसान काम नहीं है बेटी। अगर जल्लाद का मन नहीं टिका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। चारू बेटी, सुन रही हो ना? हाँ पापा, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा पहला सबक, रस्सी की लंबाई अपराधी के वजन के अनुसार होना चाहिए। ये अगर सही नहीं हुआ तो अपराधी उस फांसी में तड़प तड़प कर अपनी जीभें काट कर मर जाएगा बेटी। ऐसे नहीं होने देना। पहले तुम्हें उसके हाथों को पीछे कस के रस्सी से बांधना है, फिर उधर रखे काले कपड़े से उसके चेहरे को ढकना है, फिर उस फांसी को उसके गले में कसकर बांधना है। तभी उसका गला टूटकर उसके सरों में जा रहे हुए सारे नस टूटकर कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। बेटी, इसे करते वक्त कभी भी उसकी आंखों में मत देखो। तुम्हें अपराधी की आंखों में एक प्रतीक्षा दिखाई देगी, वो अंतिम समय तक बचना चाहेगा। फिर तुम्हें उस पुलिस के गिनती पर 3, 2, 1 उस लीवर को खींचना है बेटी। बेटी, ऐसे डरोगी तो कैसे होगा? तुम्हें हिम्मत से काम लेना है बेटी। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ऐसा कर सकता हो ना? हाँ हाँ? हाँ। तुम बिल्कुल गलती नहीं करोगी ना? नहीं पापा, नहीं। देखो चेतन, ये हमारे परिवार का इज्जत का मामला है। कौन है रे? तू है ना रविंदर? यही है तुम्हारी बेटी जिसको तुम जल्लाद बनाना चाह रहा है? बेटे अंदर से बेटे वो कहीं नहीं जाएगा। मर्दों की इस राज में
शांत रहो मालिक जी, शांत रहो। हमें इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिला था कि आपको हमला होने वाला है। आप शांति से भी बैठिए, मेरा एक टीम आपकी सुरक्षा के लिए इधर होगा, ठीक है? आप जाकर सो जाइए, कल सुबह आपको याद है ना, कल सुबह, ठीक है? मैं चलता हूँ, मेरा टीम इधर रखिए, ठीक है? बेबी शालवा जी, आप तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। होने कोई आखिरी ख्वाहिश? अब तक नहीं था साहिब, लेकिन अब मुझे एक आखिरी ख्वाहिश है। मुझे फांसी दे रही चारबदा जी से एक बात करना। शालवा जी, आप बात करना चाहोगी? हाँ सर, बात करो। सर, आदेश। मैडम जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्यों बात करना चाहता। अगर आज मेरी बेटी जिंदा रहती तो शायद आपकी उम्र होती, मगर कुछ जीना शुरू करने से ही पहले कुछ दरिंदों ने उससे वो कानून से बचकर और लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। वो मुझे सहा नहीं गए, उनके पास ख्वाहिशत है, वो कानून से बच गए, लेकिन ना अपनी अदालत में उनको सजा दे दिया। कुत्तों को मैं तड़पा मार दिया। मुझे न्याय करना चाहा मैडम जी, मगर ने मुझे हरा दिया। ये कैसी कानून है? हमारे देश की कानून बहुत पुरानी है, उसे हम बदल नहीं सकते। उस नियमों का एक कठपुतली माध्यम है। जो आपको सही लगा वो आपने कर दिया, जो कानून को सही लगा वो मुझसे करवाई जा रही है। दोनों खून ही है। आपने जो जीवन लिया था ना, वो वापस नहीं आएगा। मैं भी वही कर रही हूँ। चलो जी, समय हो गया। चलिए। Five, 4, 3, 2, 1. कंफर्म सर, मृत्यु का समय 5:02। सर, बाकी जितने भी फॉर्मेलिटीज है पूरा कर दीजिए और रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, ठीक है? चलो जी, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बेहतर किया। आपने अपने पापा से भी बेहतर किया। वेल डन। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक इंसान को अपने हाथों से पैसे के लिए, परिवार के लिए, पापा की खुशी के लिए मैं कौन
Charulata Aishira Lakshmi, Suraj coming in front. Devi Kridmalik Archana, Mr. Bimal Viti in various roles, Bharat MS as police and murderer, Chetan as reporter and rowdy, and self in multiple roles. Thank you. A big round of applause, please, for the performance. Close the screens. Now moving on to the next drama, that is the West Zone. So that will be the last program of this day one. और भी कई अच्छे अच्छे सिंगर्स. मैं कुछ हटके सिंगिंग से हटके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आता हूँ. आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक सम न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम माय थ्रोट. सॉरी, दिल्ली से आया हूँ. वहाँ का AQI आपको पता है. पता नहीं केरला आया तो मेरा गला बैठ गया है. हो सकता है यहाँ का AQI ज़्यादा ख़राब हो. Thank you. Thank you, Raj. Thank you so much. Now from E-Zone, someone was here. From E-Zone, anyone is coming forward? Please come. My name is Jyotsna and I'm going to sing Man Bharya. It's a Punjabi song. And I'm singing without any music. वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना मैनू मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा प्यार मेरे लो तो वे मजाक समझ के बैठे मैं सब समझ दिया तुझ वाक समझ के बैठे प्यार मेरे लो तो वे मजाक समझ के बैठे मैं सब समझ दिया तुझ वाक समझ के बैठे तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अज कर दो पर्दा तेनू पता नहीं शायद इश्क विच हिंज नहीं चढ़दा मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दे जानी लोका आगे बढ़ना बेचारा वे तू
मैनू छड़ जाना गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू ताही ता उंगला ते रोज नचाने मैनू तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू ताई ता उंगला ते रोज नचाने मैनू अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना कि वे पीता जांदा पानी खारा खारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा थैंक यू सो मच Okay, so I request one more filler, Ashish from his zone. He's going to perform a dance. Ashish. Thank you, Ashish, for the fillers. Okay, Manoj, please come up. Namaskaram and a very good evening to all the respected dignitaries, judges, esteemed guests, and all my colleagues gathered here. We from the West Zone are going to showcase the drama titled Antivandana, the Final Tribute. The artists performing the drama are Chitrang Bal as Rajiv, Ruhi's father, Preeti Lalwani as Preeti, Ruhi's mother, Monica Agrawal as Ruhi, Sumit Agrawal as Dadichi and a doctor, Priyanka Mukati as organ recipient's mother and a doctor. Synopsis of the drama goes like this. The drama presents a heart-wrenching tale that delves into the depth of parents' love and the unimaginable choices they must face. This drama showcases the parents' dilemma that explores the profound emotional turmoil and the ultimate sacrifice of choosing to donate their daughter's organ, turning their personal loss into a beacon of hope for others. Manobudh ahankar chittani naham nacha shrocheve nacha घ्राण नेत्रे नाचा व्योम भूमि ना तेजो ना vayu chidanand रूपा शिवोहम शिवोहम. So prepare yourself for a powerful performance that will touch your hearts and leave you contemplating
the true essence of love, loss, and humanity. Here, the West Zone presents Antavandana, the final tribute. The West Zone. हे महादेव, आज ये नदी जी आपकी इच्छा अनुसार इस नश्वर शरीर का त्याग कर रहा है, ताकि ये शरीर तीनों लोगों के कल्याण का कारण बन सके। आपके आशीष से मेरी हड्डियों से बनने वाला वज्र वृत्तासुर जैसे राक्षसों के लिए काल साबित होगा और सारे संसार को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाएगा। ये शरीर यदि परोपकार के कारण उपयोग ना हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर पर। हे प्रभु, इस अनुपम कार्य को करने का सौभाग्य देकर आपने मेरा उद्धार किया है। आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। कितना डर गई थी मैं, हमेशा ऐसे ही डराती रहती है। मजा आता है मम्मा, तुम्हें डराने में मुझे बड़ा मजा आता है। थक गई हो, लाओ सर की मालिश कर देगी। अच्छा ये बताओ, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? पेपर एकदम कूल। गुड। अच्छा मम्मा, रिजल्ट के बाद मॉरिशस पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। पर पापा? तेरे पापा को मैं पटा लूंगी। मेरी प्यारी मम्मा। अरे अरे अरे, अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पचमढ़ी। पचमढ़ी? इतनी शाम को? नहीं बाबा नहीं। जाने दो ना मम्मा। नहीं नहीं, कितने टाइम बाद तो हम फ्रेंड्स जा रहे हैं और अब तो एग्जाम्स भी ओवर हो गए हैं। जाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। रात को तो वापस आओगी? हाँ। खाना खाओगी या नहीं? नहीं नहीं, खाना तो बाहर ही खाएंगे ना। ठीक है, वैसे भी मैं अब तेरा खाना खाने नहीं बैठने वाली। अच्छा मम्मा, टाइम से घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर पापा के साथ मॉरिशस प्लान कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और ट्रैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, रात हो चुकी है। बाय बेटा, आई लव यू। बाय बाय बाय, टेक केयर। ये दरवाजा खुला ही क्यों छोड़ दिया? अरे अंदर आई तो रूही से बातों नहीं लग गई, दरवाजा लगाना ही भूल गई। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ है रूही? रूही मैंने पचमढ़ी गई। तो रात में वही उठने का प्लान है क्या? नहीं नहीं, रात को तो घर आएगी, ऐसा बोला तो है उसने, लेकिन उसका क्या भरोसा, हो सकता है वहाँ भी उठ जाए। वैसे भी अब तक 50 बार पचमढ़ी जा चुके हैं ये लोग। हाँ बात तो सही है। चलो एनीवे, पेपर कैसा गया उसका? कूल मम्मा, ऐसा कहा उसने। ओह कूल, इसका मतलब इस बार भी फर्स्ट क्लास कंफर्म? शायद। एनीवे, रिजल्ट के बाद तुमने उसे मॉरिशस ग्रुप का कमिटमेंट किया है, याद है ना? आई नो, पर पहले मुझे ये तो बताओ कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है? इतनी जल्दी कहाँ डेट मालूम होगी, आज ही तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं। हाँ मतलब इन शॉर्ट अभी तो काफी समय है हमारे पास टूर प्लान करने के लिए। क्या कहा? तुम टूर प्लान करोगे? मतलब टूर की प्लानिंग हमें कहाँ करनी होती है? प्लानिंग तो हमारी रूही मैडम करती हैं, हमें सिर्फ रुपए देने हैं, रुपए। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन रुपयों की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। चलो वो सब तो आगे की बातें हैं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, आज रूही भी घर पर नहीं है, क्यों ना हम एक रोमांटिक डिनर डेट पर चलें? क्या बात है, क्या बात है, आज कुछ अलग ही मूड पे हो। इससे पहले कि तुम्हारा मूड चेंज हो जाए, मैं फटाफट से तैयार हो गया। हाँ लेकिन जल्दी है ना, पिछली बार भी तुम्हारे कारण लेट हो गए थे। हाँ बस 2 मिनट दो। हेलो, हाँ दिया बेटा, हाँ हेलो, हाँ दिया बेटा, रूही क्या कर रही है? हेलो, क्या हो गया? तुम भी पचमढ़ी गई हो ना?
हेलो, तुम्हारी आवाज, हेलो। अरे क्या हुआ, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं, दिया का फोन था, इतना डिस्टर्बेंस बीच में ही कट गया। तो फिर से लगा दो ना। हाँ बोल। हेलो, हाँ मानसी बेटा, क्या बात है? एक के बाद हर कोई फोन कर रहा है, तो ठीक तो है ना? कहाँ? अरे इधर यानी किधर? क्यों? अरे लेकिन क्यों? रूही कहाँ है? बात करो उससे। क्या? अब कैसे हो? हाँ, बहुत बुरा निकलता है। ओके। क्या हुआ राजी? किसका फोन था? क्या हुआ राजी? कुछ आगे बोलोगे भी या नहीं? क्या राजी? किसका फोन था? कुछ बताओ। हमें निकल रहा है बेटी। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ। पता नहीं वो कैसी। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। राजी, और रूही के शरीर में भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है राजी। और उधर दिया, मानसी और बाकी लड़कियां भी इतनी घबराई हुई है कि कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा। राजी, दरअसल हुआ क्या था? ये लोग पचमढ़ी गए थे ना? पचमढ़ी गए थे, पहुंच भी गए थे। रात को अचानक रूही के मन में ख्याल आया कि खड़े पहाड़ की चढ़ाई की जाए, ऐसा सब कह रहे हैं। रात के अंधेरे में? तुम ही देखो, रूही के मन में ख्याल आया और सब के सब पहुंच गए पहाड़ी के नीचे। शुरू कर दी चढ़ाई चढ़ना। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद न जाने उसका हाथ फिसलाया पांव, वो इतनी ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गई। राजी, डॉक्टर्स ने क्या कहा? मुझे एग्जैक्टली बताओ राजी। जब मैं अंदर गया तब उन्हें मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। मतलब वो नहीं जानते थे कि मैं ही हूं बच्ची का बाप। उनकी आपस में चर्चा चल रही थी। क्या पोजीशन है पेशेंट? सर 150 की ऊंचाई से सर के बल गिरी है बॉडी। स्थल की हड्डियां टूट के ब्रेन में फंस चुकी है, ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ओके, ब्लीडिंग? ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। व्हाट आर द चांसेस? नो ऑफसेट अल्सर, सिर्फ हार्ट बीट चल रही है, पेशेंट कोमा में चली गई। ओके, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कीजिए, हमें जल्दी से एनपीडी लेना होगा। ओके सर। हरी अप। राजी, डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं राजी? अरे कुछ भी बता जा रहे थे पागलों जैसे। अरे उस बॉडी का बाप यहाँ खड़ा है और उस बॉडी का नाम रूही है। रूही। अरे ऐसे कैसे ब्रेन डैमेज हो सकता है उसका? फर्स्ट क्लास करियर है मेरी बच्ची का, ऐसे कैसे ब्रेन डैमेज हो सकता है? प्रीति, हमारे रूही की हालत बहुत क्रिटिकल है प्रीति, बहुत ही क्रिटिकल। सच बताओ, क्या हुआ है रूही को? बताना बड़ा कठिन है प्रीति। हमारे रूही कोमा में चली गई है, बेहोश है। वो नॉर्मल तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते। उसे ऑपरेशन थिएटर क्यों नहीं ले जा रहे? राजी, उसे हेड इंजरी हुई है। कोई देखो ना उसको राजी, कोई देखो उसको राजी। देखो, उन्होंने प्राइमरी जांच कर ली है, अभी थोड़ी ही देर में न्यूरो सर्जन आने वाले हैं। इतनी ऊंचाई से गिरी है, वो भी सर के बल। शायद उसके दिमाग में हड्डी का टुकड़ा घुस गया, स्कल ब्रेक हो गया है। नहीं, थोड़ी देर पहले जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे पहचान लिया था। What? हाँ, जब तुम डॉक्टर से मिलने गए थे, मैं चक्कर लगा रही थी। मैंने यूं ही अंदर झांककर देखा, मेरी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी। मैं उसे गौर से देख रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे देखा राजी। Are you sure? हाँ, देखा तो था, मुझे ऐसा लग तो रहा है राजी। प्रीति, अगर ऐसा है तो मुझे अभी डॉक्टर को बताना होगा। उन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ
कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हॉस्पिटल से फोन आया तो मैं भी घबरा गई थी। और तुम्हारे पापा को तो सूझता ही नहीं है कुछ। पता है ना कितना डर जाते हैं वो। मुझे तो डर लग रहा था कहीं उनका बीपी ना हाई हो जाए, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप जाइए डॉक्टर से मिलिए। और तुमने मुझे देखा, ये तो मैंने यूं ही बोल दिया था। शायद राजी आ गई। मैं उसको बोल के आती हूँ हमारी रूही बिल्कुल ठीक है, वो डॉक्टर्स को बता दो। राजी, तुमने डॉक्टर्स को बता दिया ना? राजी, तुमने डॉक्टर्स को बता दिया ना सब? क्या मतलब? ये रूही के शरीर में हलचल हो रही है। पागलों की तरह बड़बड़ाओ मत प्रीति। पागलों की तरह? मतलब राजी, तुम्हें सचमुच मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे मैं सच बोल रही हूँ, रूही के शरीर में सचमुच हलचल हो रही थी। और तो राजी, थोड़ी देर पहले मैं मुझसे बातें भी कर रही थी। नहीं प्रीति, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हमारी बेटी की हालत बहुत सीरियस है। क्या था? राजी, क्या आपने? रूही मस्त हो जाएगी ना राजी? चांसेस तो है ना? राजी, रूही मस्त हो जाएगी ना? सुनो, पिछले 2 घंटे से रूही किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो गया है, लिहाजा वो किसी भी ट्रीटमेंट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। पल्स चल रही है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा शायद कुछ देर बाद वो भी। नहीं राजी, यूं हमारी रूही। अपने आप को संभालो प्रीति। राजी, सच बताओ ना, डॉक्टर्स ने क्या कहा राजी? देखो हमारी रूही अभी जिंदा, लेकिन उसके जीने की उम्मीद तो भी कम हो गई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी कुछ देर पहले इस हॉस्पिटल में एक और एक्सीडेंट केस आया। 20-22 साल का लड़का है। एक्सीडेंट में उसका लिवर पूरी तरह डैमेज हो गया। तो डॉक्टर्स पूछ रहे थे कि अगर हम परमिशन दें तो वो रूही के लिवर को उस लड़के के लिवर के साथ मैच करके देखना चाहते हैं, जिसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट करके वो लड़के की। तुम्हारे पास थोड़ा सी भी अकल है या नहीं? हमारी रूही अभी जिंदा है राजी, और उसके बारे में डॉक्टर्स की ये सब कहने की हिम्मत भी कैसे हुई राजी? देखो वो मुझसे पूछ ही रहा है। नहीं राजी, हमारी रूही का यहाँ बिल्कुल भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा। चलो ना मुझे किसी और अस्पताल लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है मैंने ऐसे धर्मों के बारे में बहुत सुन रखा है। वही तो कहूँ, आधा घंटा हो गया और कोई डॉक्टर यहाँ चक्कर लगाने तक नहीं आया। राजी, चलो ना रूही को किसी और अस्पताल लेकर चलते हैं। एक काम करो, तुम डॉक्टर्स को ले चलो। मैं बैठी होती रूही के पास। राजी, हमारी रूही बहुत तकलीफ में है राजी। अपने आप को संभालो। मैं डॉक्टर को
आपकी परमिशन नहीं दे सकती। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे अरे रूही बेटा, तुम तो सब जानती हो ना बेटा। हाँ, मैं सब जानती हूँ, और मुझे आपसे सुनना है। Is there any hope? वो क्या है ना डैड, मुझे मेरा ही समझ नहीं आ रहा क्यों मैं उस डेड बॉडी पे पड़ी हूँ और क्यों वो हरा ग्रीन का बार बार ऊपर नीचे होकर मुझे इरिटेट कर रहा है। लेकिन अभी एक आखिरी उम्मीद है, इसीलिए Anyways, अभी थोड़े समय बाद आप सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी ऐसी अशुभ बातें मत करो। डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी चमत्कार हो सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ देर और वेंटिलेटर पर रखने वाले हैं। पापा, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। पिछले 2-3 घंटों में सारी दिशाएं घूम कर आई, मुझे ना कहीं कोई चमत्कार नजर आता है, ना ही कहीं कोई आशा की किरण। और आएगी भी कैसे? 100 फीट की ऊंचाई से गिरी हूं मैं, वो भी सर के बल। अरे तो बेटा, जब सब लड़कियां कह रही थी कि सीधे रास्ते से ऊपर चलते, तो क्यों नहीं मानी उनकी बात? क्यों अपनी जिद पर अड़ी रही? क्योंकि मेरा वक्त आया था पापा। अभी तक न जाने कितनी बार पचमढ़ी की चढ़ाई चढ़कर आई, लेकिन आज मेरा हाथ फिसला और मैं गिर गई। काल को जब आना होता है वो आ ही जाता है, होनी को कौन टाल सकता है पापा। एनीवेज, आप तो मुझे ये बताइए, आपकी और मम्मा की कुछ बहस हुई क्या? तुम्हें नहीं पता क्या बेटा? तो आपको क्या लगता है डैड, लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? बेटा, मुझे तो तुम्हारा हर एक अंग, प्रत्येक जीवंत अवयव किसी न किसी को दान में देने की इच्छा। That's right, my dad. वैसे मेरी आंखें भी एकदम अच्छी है। हाँ, ब्रेन थोड़ा डैमेज हो गया है, पर आंखें एकदम अच्छी है। डैड, आप जाइए ना डॉक्टर से, उनसे कहिए कि मेरी आंखें निकालिए। मैंने सुना है मौत के 1 घंटे के बाद आंखें निकालनी ही पड़ती। नहीं बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। कम ऑन डैड, कुछ नहीं बचा है। बी क्लियर, ओके? आप उठिए, डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कहिए मेरे सारे बॉडी पार्ट जो किसी ना किसी के काम आ सकते हैं उन्हें निकाल लें। लेकिन प्रीति, आप जाइए तो सही, मम्मा को मैं संभालूंगी। वो याद है जब ओवरनाइट पिकनिक के लिए जाना होता था, आप तो आसानी से मान जाते थे, पर मम्मा, उनको मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने होते थे। और फिर रात भर तुम उसका सर खाया करती थी। हाँ, उन्हें सोने ही नहीं देती थी, और आखिरकार वो भी हाँ बोले देती थी, पर साथ में 100 हिदायतें, ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना। पर भाई, मैं तो उनकी सारी हिदायतें उनकी दहलीज पे छोड़ के वही करती थी जो मुझे करना होता था। हाँ, और फिर वापस लौटने के बाद तुम वो सब बातें मुझे बताती थी। हाँ, you are my best friend, Dad. मम्मा थी, पर तुम तो दोस्त थे। ये मतलब कुछ नहीं डैड, तुम जाओ ना, जल्दी जाके डॉक्टर से बात कर लो, क्योंकि मम्मा को सारी रात मनाने के लिए हम मेरे पास भी वक्त नहीं है। डैड, आप उठिए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। शायद मम्मा बाहर आ रही, तुम जल्दी करो डैड, जल्दी से डॉक्टर से मिल के आओ। मम्मा, पूरा सिर फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी एक सांस लंबी होकर खत्म हो रही है। Face the fact, मम्मा, I am no more. रूही,
ये सब क्या बोले जा रही हूँ बेटा? सिर्फ 21 साल की हो तुम। और तुम्हें याद है हमने कल सुबह क्या क्या तय किया था? हाँ, हमने तय किया था रिटर्न के बाद मॉरिशस जाना है, प्लेसमेंट कहाँ लेनी है, और बात तो सीधा शादी तक पहुंच गई थी। तुमसे कुमार से सब क्या बोले जा रही हो रूही? यस मम्मा, आई नो मोर। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक एक्सीडेंटल केस है, इसलिए पुलिस आई थी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो अच्छा मैं तुम्हारा जीवन उस बच्चे को ही दे दूं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। That's it. See, here you are, मम्मा। तुम्हारे बॉडी की ऐसी चीज बात मैं नहीं होने दे सकती रूही। तुम्हें याद है 7वीं क्लास तक मैं तुम्हें हर शनिवार तेल लगाकर लगाती थी और तुम्हारी कोई तारीफ कर दे तो? हाँ, मेरी कोई तारीफ कर दे तो 4 दिन तक मेरी नजरें उतारती थी। मुझे भी वो सब बहुत अच्छा लगता था मम्मा। वो नमक और दूध की खुशबू, वो तो अभी तक मेरी नाक में है। तो आज ये सब क्यों हो रहा है रूही? अब इन सब पे बहस करके कोई फायदा नहीं मम्मा। वैसे भी मेरे इस टूटे फूटे शरीर का क्या उपयोग? मम्मा, क्या तुम नहीं चाहती मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम मुझे महसूस करती रहो, मेरी आंखें ये दुनिया देख पाए और मेरे दिल की धड़कनें तुम हमेशा सुनती रहो? देखो रूही, नहीं मम्मा, आज तुम कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ सुनो। तुम्हें सिर्फ झूठी तसल्ली मिलेगी। मुझे हॉस्पिटल से घर ले जाओगे, हॉल में रखो, पर सफेद चादर डाली जाएगी। दूसरे दिन मुझे शमशान ले जाओगे। पापा मेरी बॉडी के 3 चक्कर काट के मटकी फोड़ देंगे और आखिरकार मुझे जला दिया जाएगा। कुछ ही पलों में मैं राख और कोयले में बदल जाऊंगी। यही चाहती हो तुम? बोलो ना मम्मा, यही चाहती हो? नहीं मम्मा, तुम ऐसा नहीं चाहती। तुम ऐसी हो ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी मम्मा हो। पापा मेरी आंखें डोनेट करने गए और मेरे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर से बात करने गए। मतलब उसे इस बात में मेरी नहीं सुनी ना? नहीं, बार की तरह अपनी बात पर आ रहा है वो। नहीं मम्मा, सिर्फ पापा ही नहीं, हम दोनों ने ये तय किया। और मैं जानती अंदर ही अंदर तुम भी यही चाहती। नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुमने और पापा ने जीवन के हर मोड़ पे मुझे इतना प्यार किया। मैं भी तुम दोनों से दूर नहीं जाना चाहती मम्मा, पर अब मुझे जाना पड़ेगा। वहाँ जहाँ सब सिर्फ एक शून्य है, पर मैं वादा करती हूँ ना, उस शून्य से निकलकर तुम्हारी बेटी बनकर मैं आऊंगी ना। ये मम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी आंखें, मेरा दिल सब यही रहेगा ना तुम्हारे पास। चलो, या तो कर, अब ऐसे रो मत मम्मा। अब मुझे जाने हुई। नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। नहीं अब मेरा वक्त आ गया। रोही, हमको शर्म आना पड़ी थी। उससे पहले ही सब खत्म हो गया था राजी। अब क्या? हमारी रूही अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती थी। चलो ना राजी, डॉक्टर से बात करते हैं। मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ। वैसे मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं बच्चे को मरने नहीं दूंगी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी राजी। मुझे तुम पर विश्वास था प्रीति कि तुम अवश्य परमिशन दोगी। उसके पहले हम दोनों को इस फॉर्म पर साइन करनी होगी। आप इस फॉर्म पर साइन करेंगे। पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। वैसे ये बात मुझे पहले भी पता थी प्रीति। जब तुमने दधीची के ऊपर नॉवेल लिखने की बात कही तभी मैं समझ गया था कि तुमने उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है प्रीति, मुझे तुम पर गर्व है। राजीव, राजीव, हाँ प्रीति, हमारी रूही राजीव, हाँ प्रीति, हमारी रूही हमें देख के हंस रही है राजीव। हाँ प्रीति, उसके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिख रही है राजीव। हाँ प्रीति, उसके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिख रही है राजीव। नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिरवाना रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिरवाना रे। अंगना में फिरवाना रे। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पश्चिम क्षेत्र की ओर से इस नाटक जो एकांकी यहाँ पर अभी प्रदर्शित की गई उसके जो पात्र हैं उनके परिचय इस प्रकार हैं। चित्रांग बाल एज रूही's फादर और राजीव, प्रीति लालवानी मैडम रूही's मदर एंड प्रीति, मिस मोनिका अग्रवाल एज रूही, मिस्टर सुमित अग्रवाल एज दधीची, सेंट दधीची एंड डॉक्टर, and Mrs. Priyanka Mukati as organ recipient's mother and nurse. Thank you once again. And tomorrow, the day 2 starts with the singing competition at 10 a.m. followed by the group dance and the valedictory function. Please note, tomorrow the singing competition will be beginning at 10:30 a.m. So all the participants are requested to assemble here at 10 a.m. sharp so that we can proceed for the day 2 program and complete the event on time. Thank you, one and all.